دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 29۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ جب تک ظلم و ستم کا یہ طوفان رکے گا نہیں، نئے نئے لوگ بندوق تھامتے رہیں گے، اور جب تک بندوق گرجتی رہے گی حالات ایسے ہی رہیں گے۔ حکومت کی جانب سے انہیں امداد ملتی رہتی تھی، مگر ایسے لوگ صاحب دل تھے۔ وہ دل سے یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حق کا فیصلہ جلد ہو جائے تاکہ اس خطے میں امن کا راج قائم ہو سکے، اور ایسے ہی لوگوں کے ذہن کو موڑنے کے لیے مہندر وشی جیسے ایجنٹ کام کر رہے تھے۔ انہیں حکومت کی جانب سے بھرپور حمایت حاصل تھی۔ دہلی سے اسلحہ و رقم کے علاوہ دیگر مراعات بھی ملتی رہتی تھیں۔ احمد نے اس سے ٹکرا کر انصاف پسند ہندوؤں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، اور وہ مرحوم احمد کی حمایت میں دبے لفظوں میں بولنے بھی لگے تھے۔ کمانڈر علی نے پروفیسر سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ میری کمانڈ کا علاقہ ہوتا تو میں براہ راست ان ہندوؤں پر کام کرتا اور بجائے خود بندوق اٹھانے کے انہیں غاصب فوجیوں سے ٹکرا دیتا۔ پروفیسر میدان جنگ کے لیے صفر تھے، جنگی حکمت عملی سے بالکل ناواقف تھے۔ جواب کیا دیتے؟ خاموش تھے۔ علی اس وقت بھی اسی نہج پر غور کر رہا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ احمد کے ساتھیوں کا جواب آنے ہی والے تھے، اور انہیں ساتھ لے کر وہ درے میں مقیم RSS کے ٹرینڈ ورکروں کو ان کے اصل مقام جہنم میں پہنچانے کا انتظام کرنا تھا۔ یہ لوگ کس مقصد سے اتنے خفیہ انداز میں یہاں جمع ہوئے تھے، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ حسن جو احمد کے لڑاکا دستے میں اہم مقام رکھتا تھا آ گیا، اور اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، میں نے اپنے آدمیوں کو درے کی جانب روانہ کر دیا ہے، وہ لوگ حملہ کرنے ہی والے ہوں گے، جلدی چلیے۔ علی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس پہاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں ایک درے میں اس نے خاکی ہاف پینٹ، خاکی ترچھی ٹوپی اور سفید شرٹ میں مربوط RSS کے ورکروں کو دیکھا تھا۔ وہ سب بڑے منظم انداز میں قطار بنا کر بیٹھے تھے، جیسے انہیں کسی خاص حکم کا انتظار تھا۔ پروفیسر اور علی حسن کے ساتھ اس پہاڑی پر پہنچ گئے جس کے درے میں ان کے شکار چھپے ہوئے تھے۔ درے پر پہنچ کر حسن نے نیچے دیکھا، دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کئی خیمے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ نیچے جمع شدہ افراد کئی دن سے وہاں مقیم ہیں۔ اس نے ان کے کپڑوں کو بغور دیکھا، خاکی نیکر اور سفید شرٹ، اس پر خاکی ترچھی ٹوپی۔ اس پوشاک کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن تنظیم RSS کی یونیفارم تھی، یقیناً یہ اسی کے ورکر تھے۔ حسن نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہ تو RSS کے کارکن ہیں۔ تو میں نے کیا کہا تھا، آسمانی فوج جمع ہے یہاں۔ ارے بھائی، انہیں خصوصی طور پر یہاں بلایا گیا ہوگا، یہ راجندر ونشی کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ راجندر ونشی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب یہاں کے نوجوان بھی جاگ اٹھے ہیں، وہ غلامی پر موت کو ترجیح دینے پر کمر بستہ ہیں، اسی لیے اس نے اپنی مدد کے لیے
दिल्ली या हिमाचल प्रदेश से इन्हें बुलाया होगा ताकि मुस्लिम बस्तियों पर हमला कर सके। इस हमले का सीधा फ़ायदा ये होगा कि ऐसी कार्रवाई को वो मुजाहिदीन के सर मुंड देंगे, कहेंगे कि आतंकवादियों के दो ग्रुप टकरा गए। इस तरह इंटरनेशनल मीडिया को वर्गलाया जा सकता था, यानी एक तीर से बाआसानी दो शिकार किए जा सकते हैं। यानी जो मारे जाएंगे वो भी मुसलमान होंगे और उनकी मौत के ज़िम्मेदार ठहरा कर जिन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा वो भी मुसलमान होंगे और आलमी तौर पर बदनाम भी मुसलमान होंगे। प्रोफेसर उस्मान बोले। अब हमें क्या करना होगा? हसन ने पूछा। वो तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम है। हम ऊपर हैं और वो नीचे, इसलिए हमारी गोलियां ज़्यादा कारगर साबित होंगी, प्रोफेसर ने कहा। हसन ज़ोर से हंसा, फिर बोला, ये तो पहाड़ी तोदे देख रहे हैं ना, धमाकों से टूटकर हम पर ही गिरेंगे, गोया हमारा कचूमर बन जाएगा। अच्छा तो क्यों ना हम इन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लें। प्रोफेसर ने तोदों पर नज़रें जमाकर ख्याल ज़ाहिर किया। ख्याल बुरा नहीं है, अली ने कहा और आरएसएस वालों के पड़ाव पर नज़र डाली। उनका पड़ाव नशीब में था और जहां वो लोग मौजूद थे वहां दोनों किनारों पर हज़ारों टन बर्फ़ रेत के ज़र्रात की तरह ढलान के किनारों पर जमा थी। वो बेनज़र गायर जायज़ा लेकर बोला, सर वो जगह मुनासिब रहेगी। प्रोफेसर ने जायज़ा लिया, फिर कहा, हाँ वो जगह खासी महफूज है। और फिर वो सब उधर ही बढ़ते चले गए। उस जगह पहुंचकर सब ने अपनी अपनी राइफलों की नाल ऊपर कर ली। तभी हसन ने नारा लगाया, नाराए तकबीर। सब ने एक साथ कहा, अल्लाह अकबर। फिर ऐसी लगा जैसे उन सब पर जनून तारी हो गया हो, गोया वो सब ट्रैगर पर उंगली रखकर उसे उठाना भूल गए थे। फायरों की आवाज़ हम अंग होकर धमाकों में बदल गई थी। धमाकों की वजह से खामोश फिजा में अरताश पैदा हुआ और उससे खाई के किनारों पर ढलवानों पर उभरे हुए पत्थरों पर जमा शुदा बर्फ़ के ज़र्रात धीरे धीरे खिसक कर खाई में गिरने लगे। उनके साथ छोटी छोटी टूटी हुई चट्टानें जो बर्फ़ में फंसी हुई थी वो भी गिर रही थी। इससे पहले के नीचे वाले सबल पाते बर्फ़ के गिरने की रफ्तार में हद से ज़्यादा तेज़ी आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे मूसलाधार बारिश हो गई हो। चंद सेकंड के अंदर हज़ारों बल्कि लाखों टन बर्फ़ खाई में गिर चुकी थी। प्रोफेसर ने झांक कर नीचे देखा, तकरीबन 10 फुट ऊंची बर्फ़ जमा हो चुकी थी। खेमे के केडरास पर बर्फीली बारिश में जिंदा दफन हो चुके थे। उस कामयाबी ने सबके हौसले बुलंद कर दिए, क्योंकि बर्फ़ के हथियार से उन्होंने दुश्मनों को एक पूरी ब्रिगेडियर को नीज़ तो नाबूद कर दिया था। नई मदद आते आते राजेंद्र वंशी के चेहरे से नकाब हट चुका होगा। इस ख्याल के आते ही प्रोफेसर ने कहा, हसन अपने साथियों को भेज दो, हम कुछ देर के बाद आएंगे। अहमद के साथियों में गज़ब का नज़्म नसक था। मुजाहिदीन के लिए मुनज़्ज़म होना, हुक्म की पाबंदी करना ज़रूरी है। इसकी वो सब जिंदा मसाल थे। हुक्म सुनते ही वो सब बगैर कोई सवाल किए खामोशी से लौट गए। बाकी रह गए प्रोफेसर उस्मान, कमांडर अली और हसन। वो तीनों उसी तरफ बढ़ रहे थे जिधर वो बर्फानी इंसान कलांचे भरता हुआ गायब हुआ था। उन्होंने बमुश्किल 3-4 फरलांग का फासला तय किया था कि पहाड़ी की ओर से एक गोला आया और सीधा उनके कदमों में गिरा। उस गोले से गाढ़ा गाढ़ा कसीफ धुआं निकल रहा था। वो अभी इस पर गौर भी नहीं कर पाए थे कि उनके जहन पर तारीकी छाने लगी। एक के बाद एक तीनों ज़मीन पर गिर गए। सबसे पहले प्रोफेसर को होश आया और उन्होंने आसपास का जायज़ा लिया। वो शायद कोई गार था, सुरंग नुमा गार। वो और उनके साथी बंधी हुई हालत में फर्श पर पड़े थे। उस गार का जायज़ा मुकम्मल भी ना हो पाया था कि वो चौंक गए। सामने की तरफ से राजेंद्र वंशी चला आ रहा था। उसके नज़दीक पहुंचकर कहा, प्रोफेसर तुम वाकई बहुत ख़तरनाक इंसान हो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अजीब इत्तेफाक है, जब से मैं यहाँ आया हूँ पता नहीं कितने लोगों ने यही जुमला दोहराया है। ये शायद तुम ही लोगों की कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।
चाहे सारा जग बैरी हो जाए, फिर तो मेरा कुछ कैसे बिगाड़ लोगे। मैं तुम्हें सिसका सिसका कर मारूंगा, बल्कि मैं नहीं, वो बर्फानी इंसान तुम्हें चीर फाड़ कर खाएगा। बर्फानी इंसान पर याद आया, वो क्या चीज़ है भाई? यति है, गलत। यति यानी बर्फ़ का आदमी के बारे में कहा जाता है कि वो गोरा होता है, उसके बाल सुनहरे होते हैं और वो 7 से 10 फुट का होता है। तुम बहुत कुछ जानते हो, मगर ये सारी मालूमात तुम्हारे साथ इसी बर्फानी मैदान में दफन हो जाएगी। अभी तो ज़िंदा हूँ, इसका राज बता दो, उसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही बता दो। तो सुनो, वो यति नहीं, एक जंगली इंसान है। काफ़ी पहले हमारे इसी गांव की एक औरत को रीछ उठाकर ले गया था। ये तो तुम जानते ही होगे कि रीछ और औरत के मिलाप से भी बच्चा पैदा होता है। उसकी कई मसालें दुनिया की मुख्तलिफ लेबार्ट्रियों में महफूज हैं, जिनमें नेशनल म्यूज़ियम कलकत्ता भी है। हाँ, इसीलिए डार्विन ने थ्योरी पेश की थी कि इंसान पहले बंदर था, क्योंकि दोनों के जिस्म में परवरिश पाने वाले खुलिये तकरीबन एक जैसे हैं। इसलिए बंदर और रीछ दोनों से इंसानी बच्चा पैदा हो जाता है। मादा रीछ और औरत दोनों के अंदरूनी निज़ाम यकसा हैं। तो जनाब, इस औरत को बर्फानी रीछ ने अपने गार में रख लिया था। वहीं इस औरत के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो 3 साल का था कि एक रोज़ उसकी माँ मर गई। बच्चा माँ के बगैर उस गार में ना रह सका, क्योंकि रीछ ने अब उसके लिए खाना लाना छोड़ दिया था। भूख से बेताब होकर वो बाहर निकला तो उस पर मेरी नज़र पड़ गई और मैं उसे ले आया। तब से उसकी परवरिश कर रहा हूँ और उसमें कुछ खसलतें इंसानों जैसी हैं तो कुछ रीछ जैसी। जिस्म पर बाल रीछ जैसे हैं तो अय्यारी इंसानों जैसी। अब समझे कि वो तुमसे खौफजदा क्यों हो गया था। वो पस्तौल की हलाकत खेदी से आगाह है, उसे कहाँ रखा है? ये गार तो उसी का तो है। अंदर एक जगह मैंने उसके लिए पिंजरा बना दिया है, उसी में मैं उसे इशारा करता हूँ तो वो मेरे दुश्मन पर टूट पड़ता है। अभी मैं जाकर उसे आज़ाद करूँगा ताकि तुम्हारा नापाक वजूद मिट सके। ये कहकर उसने अपने कदम अंदर की जानब बढ़ाए। अली और हसन अब तक बेहोश थे। वो अगर चाहते तो भी राजेंद्र वंशी को रोक नहीं सकते थे। इस हालत में वो अकेले क्या कर सकते थे? इसी बात पर वो गौर कर रहे थे कि राजेंद्र वंशी लौट आया और उसने नज़दीक पहुंचकर कहा, अलविदा प्रोफेसर, मैंने तुम्हारी मौत को आज़ाद कर दिया है। वो कुछ ही देर में तुम तक पहुंच जाएगा। तभी गार के अंदरूनी हिस्से से चिंगार बुलंद हुई। हसन मीर और जावेद के दरमियान गुलाम रसूल बैठा था। हसन मीर उसे शानों की अजीबोगरीब बीमारी के बारे में बता रहे थे कि शानों उनके दोस्त की बेटी है जिसे वो अपनी बहू बनाकर लाए थे। मगर शादी वाले रोज़ जैसे ही जावेद हिजला अरोसी में पहुंचा, शानों ने चीखना शुरू कर दिया कि वो किसी आमर नामी लड़के से मोहब्बत करती है, जबकि उस पूरे इलाके में उस नाम का कोई लड़का नहीं है। मगर वो आज भी आमर के आने की मुंतज़िर है कि तुम आ गए और उसने तुम्हें आमर मान लिया। बातें जारी थी कि शानू दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और उसने आते ही कहा, ये क्या पिला दिया था मुझे कि मैं बैठे बैठे सो गई। उसकी बात हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। उसकी जहानत अमीद बात को सुनकर भी बड़े मियाँ ने नज़रअंदाज कर दिया और बोले, हमने तो कुछ नहीं दिया। मैं सबको पहचानती हूँ। अभी सब ने मेरी शराफत देखी है, गुस्सा नहीं। लड़की ने धमकी अमीर लहजे में कहा, अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ। तू जहन्नम में चली जा, जावेद गुर्राकर बोला। हसन मीर ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फिर तेरा दिमाग घूमा। दिन रात समझाता हूँ तुझे, मगर कभी कोई बात मान कर दी है तूने? छोड़िए अब्बा जी, क्या बात मान कर दूँ? मेरी जगह आप होती तो मैं देखता कि आप गुस्से पर कितना काबू पाते हैं। खामोश हो जा बेटे, खामोश हो जा। आमर, तुम यहाँ क्यों आ बैठे हो? चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, लड़की ने आगे बढ़कर कहा। मैं गुलाम रसूल के चेहरे से घबराहट आया थी। उठो, उठते क्यों नहीं हो? शानों ने आगे बढ़कर गुलाम रसूल का बाजू पकड़ लिया। हसन मीर बुरी तरह हरासा हो गए थे। गुलाम रसूल ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो शानों जैसे उनके देखने का मतलब समझ गई।
क्या तुम इन लोगों से डर रहे हो? क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा? हैं? कोई रोक कर देखे तुम्हें? चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। हसन मीर ने आंखों से इशारा किया तो गुलाम रसूल बोला, चलता हूँ भाई, चलता हूँ। वो हैरान था कि इसे होश कैसे आ गया। हसन मीर ने जिस दवा का नाम लिया था उस दवा का असर इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होता, फिर ऐसा क्यों हुआ? यकीनन शानों की मदाफ़ाती क़ुव्वत ज़्यादा है, उसका DNA ज़्यादा गंजलक है, उस पर गौर करना ज़रूरी है। कैथी को बुलाकर उसे दिखाना पड़ेगा, वो DNA के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। वो यही सोचता हुआ शानों के साथ चलता रहा। दूसरे कमरे में पहुंचकर शानों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो उस कमरे में अकेला था। किसी गैर औरत के साथ अकेले कमरे में चंद लम्हे भी गुजारना शरई नुक्ता नज़र से गलत है। उस पर तरह ये कि शानों ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया था। हर इंसान के DNA में जितनी बातें लिखी होती हैं उनमें सबसे अहम बात जज्बात होते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो DNA के हुक्म से जज्बात के केमिकल खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खुशी, गमी, दर्द महसूस करता है। लेकिन बच्चा जब 12 साल की उम्र में पहुंचता है तो एक नया केमिकल बनना शुरू हो जाता है और 14 साल की उम्र में पूरी तरह अहमियत इख्तियार कर लेता है। यही वो जज्बा होता है जो शहनशाहों को तख्तो ताराज ठोकर मार देने पर उकसा देता है, फरहाद से दूध की नहर खुदवाता है तो सोहनी को कच्चे कड़े पर चनाब पार कराता है, ताज महल बनवाता है और हदूद की दफात का मुजरम भी मशहूर कराता है। अकेले कमरे में शानों ने जब गुलाम रसूल के सीने पर सर रखा तो उसके अंदर भी जज्बात का तूफ़ान उठा। जिस्म में बिजली सी दौड़ गई, मगर वह फ़ौरन ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़कर अलग हो गया। उसे ये भी एहसास था कि हसन मीर और जावेद दूर नहीं होंगे, कमरे ही के आसपास चकरा रहे होंगे। और तब उसने दरवाजे के नीचे से आती रोशनी को देखा जो बार बार कट रही थी, साया सा आकर गुजर रहा था। उसकी नज़रों के ताक़ुब में शानों ने भी इधर ही देखा और चिंगारती हुई दरवाजे पर पहुंची। आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्यों हमारे ध्यान मखल हो रहे हैं? क्यों बार बार सताने आ रहे हैं? इतने दिनों बाद आमर आया है और उसे 2 बातें भी नहीं करने देते। खुदा के लिए आप लोग चले जाइए, वरना मैं अपना सर फोड़ लूँगी या आपका सर तोड़ दूँगी। ये कहते हुए उसने गुलदान उठा लिया और दरवाज़ा खोलकर पूरी कुव्वत से फेंका। उनकी किस्मत अच्छी थी, हसन मीर झुक गया और गुलदान दूर जाकर गिरा। जावेद गुस्से में आगे बढ़ा था कि हसन मीर ने उसे पकड़ लिया। हाँ बेटा, हम जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी बातें तुम्हारे आमर से करना थी, इसलिए रुक गए थे। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? गुलाम रसूल ने शानों की तवज्जो हटाने की कोशिश की। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं शानों, बात समझने की कोशिश करो। मुझे हसन मीर साहब से बहुत ज़रूरी बात करना है। मैं वादा करता हूँ कि बात ख़त्म होते ही चला आऊँगा। गुलाम रसूल ने उसे तसल्ली दी। अच्छी बात है, तुम जाओ, मगर ज़्यादा देर मत रुकना, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। शानों का इतना कहना ही काफ़ी था। वो अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। इधर उधर देखता हुआ वो एक बड़े कमरे में पहुंचा और उसका अंदाज़ा सही था। वहाँ सब सर जोड़े बैठे थे। उसे देखते ही हसन मीर ने कहा, आइए जनाब। वो क्या कर रही है? मैं बड़ी मुश्किल से कुछ देर के लिए बाहर निकला हूँ। समझता हूँ कि इस वक्त आप लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वैसे बेफिक्र रहें, मैं मुसलमान हूँ और ख़ुद को सिर्फ वही मुसलमान कह सकता है जिसका किरदार मजबूत हो। हमें तुम पर भरोसा है बेटे, हसन मीर बोले। मैं आपके एतमाद को धोखा नहीं दूंगा। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3 में मज़कूर है, और वो जो बेहुदा बातों से मुंह फेरते रहते हैं, मैं भी उसी कबील का हूँ। मैं खुद भी बेहुदगी पसंद नहीं करता, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ बेटे, मुझे तुम पर कामिल भरोसा है। हसन मीर ने दोबारा अपनी बात दोहराई। इतनी देर में मैंने यही समझा था कि शानों की बीमारी बहुत गंभीर है। इसे बीमारी शुमारी कुछ नहीं है, वो मकर करती है, जावेद ने गुस्से में कहा। यही समझ का फेर है। हज़रत अली करमल्ला वजहों का कौल है, ए इंसान,
تیرا علاج تیرے وجود کے اندر موجود ہے جس کا تو شعور نہیں رکھتا، اور تیری بیماری تجھی سے ہے جسے تم نہیں سمجھتے، اور تیرا وجود وہ کھلی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے حروف سے پوشیدہ امور ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم تصور کرتا ہے؟ حالانکہ تیرے وجود کے اندر ایک بڑا عالم سمایا ہوا ہے، یعنی انسان کا جسم اسراروں کا مرکز ہے۔ اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، پھر بھی وہ گھٹنوں چل رہا ہے۔ ابھی وہ انسان کے ایک عضو کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا ہے۔ یہ تم جو اپنی ایک انگلی کو ہلاتے ہو، اسے ہلانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں کھلیے کوشش کرتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، تب جا کر تمہاری ایک انگلی ہلتی ہے۔ یعنی کہ یہ پر اسرار جسم واقعی ایک جہان لیے ہوئے ہے، اس کی آبادی کھلیوں پر مشتمل ہے، اور یہ جسم اپنے اندر اتنی ہی پر اسرار بیماریاں بھی پالتا ہے جس طرح یہ عالم، یہ دنیا اسرار سے بری ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جسم بھی اسرار کا مخزن ہے۔ غلام رسول نے پوری تقریر کر ڈالی۔ تمہارا خیال ہے کہ اس پر کوئی اسیب وغیرہ نہیں ہے؟ حسن میر بولے۔ جی ہاں، اس کے ڈی این اے میں کوئی خرابی ہے، تبھی تو یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ دراصل انسانی جسم میں ننھے ذرات جتنے بے شمار خلیے ہوتے ہیں، یہی خلیے بیماری سے بچاؤ بھی کرتے ہیں اور بیماری کا موجب بھی بنتے ہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ اور ذرے سے چھوٹا الیکٹرون یا بڑا مالیکول تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ اس کی کھلی واضح کتاب میں درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں جسم کا تجزیہ کریں، خود سمجھ لیں گے کہ شانوں پر کوئی جنات کا سایہ نہیں، یہ خاص بیماری میں مبتلا ہے۔ نہ جی نہ، اس پر نہ کوئی سایہ ہے اور نہ وہ بیمار ہے۔ حکیم جی نے بتایا ہے کہ یہ پہلے جنم میں کسی عامر نامی لڑکے سے محبت کرتی تھی، اس کی وجہ سے وہ اسے یاد کر رہی ہے، جاوید کی ماں نے کہا۔ پھر تم نے بیوقوفی کی باتیں شروع کر دی۔ حکیم جی کی بات کو چھوڑو، دوسرے جنم کو گولی مارو، یاد کرو مولوی صاحب نے کیا کہا تھا کہ کوئی لڑکی کسی عامر نامی لڑکے سے محبت کرتی تھی، اسی کی روح نے اس کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ حسن میر جلدی سے بولے، اب دونوں کی باتیں عقل کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی، نہ یہ اس کا دوسرا جنم ہے اور نہ اس پر کسی روح کا سایہ ہے، بلکہ یہ بیمار ہے۔ غلام رسول نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ شانو آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، تم لوگ مجھے چین سے رہنے نہیں دو گے۔ میں کہتی ہوں، تم لوگ مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اتنے دنوں بعد تو عامر آیا ہے اور تم لوگ ہمیں باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ چلو عامر، بہت ہو گیا، اب کمرے میں چلو، کچھ دیر آرام کر لو۔ تم نے کمرے میں میرا انتظار نہیں کیا، بس میں آنے ہی والا تھا۔ تم چل کر کمرے میں بیٹھو، میں بس باتیں ختم کر کے آتا ہوں، غلام رسول بولا۔ ارے ان سازشیوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بھٹکا دیں گے تمہیں۔ نہیں شانو، ایسی بات نہیں ہے۔ غلام رسول نے اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ مان کر نہ دی۔ بولی، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں جان دے دوں گی۔ غلام رسول مجبوری کی زنجیر میں جکڑ گیا تھا، بے حالت مجبوری اسے اٹھنا پڑا۔ وہ تقریباً گھسٹتا ہوا کمرے تک پہنچا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی شانو نے دروازہ بند کر لیا اور کہہ دیا، اب اگر فرشتے بھی آ جائیں تو وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایسی شخصیت کو کس طرح راہ راست پر لایا جا سکتا تھا؟ غلام رسول کے ذہن میں یہی ایک خیال چکرا رہا تھا، لیکن کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ شانو نے بڑے آرام سے ہی اسی کے سامنے لباس تبدیل کیا۔ یہ منظر غلام رسول کے لیے قیامت کا تھا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پھر بھی اسے اپنے بدن پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انسان تو بہرحال تھا، ایک نوجوان اور خوبصورت عورت جو اپنی تمام چاہتیں اس پر صرف کیے ہوئے تھی۔ تنہا کمرے میں ہر طرح کی آزادی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے دل و دماغ پر اسلام کی مہر تھی، اور جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بہک ہی نہیں سکتا۔ غلط کردار والے مسلمان کب ہوتے ہیں؟ وہ تو مسلمانوں کے نام پر کلنک ہوتے ہیں۔ اسی خیال نے اسے اپنی آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔
शानो बहुत मसरूर और मुतमिन थी। वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चलती हुई बिस्तर पर आई। फिर उसने बेसाख्ता गुलाम रसूल के गले में बाहें डाल दी और ज़बरदस्ती उसे बिस्तर पर गिरा दिया। राजेंद्र वंशी ने गौर नहीं किया था। प्रोफेसर की बातों के दौरान में अपने हाथों को आज़ाद करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा था और उसकी ये कोशिश नतीजा खेज साबित हुई और बंधन ढीले पड़ गए थे। जैसे ही राजेंद्र वंशी ने कहा अलविदा, मैं जा रहा हूँ, वैसे ही प्रोफेसर ने उस पर छलांग लगाई थी। दोनों गुथम गुथा होकर लड़कते चले गए। गार का दहाना करीब था, इसलिए प्रोफेसर ने दोबारा हमला करने की बजाय बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि राजेंद्र वंशी उनका पीछा करने की बजाय बर्फानी इंसान को दौड़ाएगा, क्योंकि वो आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बर्फ़ पर दौड़ सकता था। इस तरह बाकी साथियों की जान महफूज हो जाती। दौड़ते दौड़ते प्रोफेसर ने अपनी पिंडली पर हाथ मारा। जल्दबाजी में राजेंद्र वंशी ने उसकी तलाशी नहीं ली थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश फहमी का शिकार था। पिंडली पर बंधा पिस्तौल महफूज था और उन्होंने दौड़ते दौड़ते उसे निकालना चाहा। फिर कुछ सोचकर इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि अकब से उन्हें चिंगार सुनाई दी थी। फिलहाल वो काफ़ी दूर था, लेकिन उन्हें एहसास था कि वो उसे दौड़ने में शिकस्त नहीं दे सकते। बिल आकर वो उन्हें पकड़ ही लेगा और फिर उनका जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। उस शैतान सिर्फ दरिंदे से रहाई नामुमकिन थी, इसलिए उनके जहन में बचाव के मंसूबों की दौड़ उनके पैरों की रफ्तार से कहीं ज़्यादा थी। उन्हें किसी बुलंद और छज्जेदार जगह की तलाश थी। अंदेशा यही था कि ऐसा कोई जगह आने से पहले वो दरिंदा आकर उन्हें दबोच ना ले।